और यहाँ पर हम हैं इन शिविर सभाओं की अंतिम सभा के अंदर। The time has gone by so quickly, और समय बहुत जल्दी से बीत गया है। and today the time has just gone by. और आज भी दिन का समय कितनी जल्दी से बीत गया। And there are many of us who are to catch the trains and buses. और हमारे में से कईयों को ट्रेन लेनी है और बसेस के द्वारा जाना है। And I know that we do not have much time at our disposal. और मैं जानता हूँ कि हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है। And yet, may we be available to the Holy Spirit, और फिर भी हम पवित्र आत्मा के सम्मुख उपलब्ध रहें, that He may yet minister to us, कि वो अब भी हमारे बीच में सेवकाई करे, that we may receive from Him those things He wants to impart to us even in this last session. और इस अंतिम सभा के अंदर भी पवित्र आत्मा जो कुछ हमारे से बांटना चाहता है उसके लिए हम खुले और उपलब्ध रहें। So let not our minds be wandering about how you are going to make it to the station. और हमारा दिमाग इस चीज में ना लगा रहे कि हम स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे। God will take care of every need. और परमेश्वर इन सारी चीजों की चिंता करेगा और ध्यान करेगा। The Lord will certainly help us. परमेश्वर निसंदेह हमारी मदद करेगा। And let's therefore keep our hearts upon the Lord. और इसलिए हम अपने मनों को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित रखें। And I would try to be as short as possible. और मैं कोशिश करूंगा जितना संक्षेप में रहूं। But I do not want at the same time cut it short in my own in my own way. और इसके साथ ही एक और बात भी जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सौम्य होकर जो परमेश्वर चाहता है उस चीज को कम नहीं करना चाहता। So let's really trust the Lord. और इसलिए परमेश्वर पर भरोसा We will रखें। turn again to the book of Hebrews and chapter 10. और हम दोबारा इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय। I am personally grateful to God in my own life मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ for these days and the word that God has spoken to my own heart. उन वचनों के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे हृदय से बातचीत करी। And I thank God for the strength that I have received in my inner man. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि भीतरी मनुष्य के अंदर परमेश्वर से जो शक्ति और सामर्थ मैंने प्राप्त करी इन दिनों में। And I thank God for the way that He has been preparing me and ministering this word into my own heart in these days. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इन दिनों में अब इन पवित्र वचनों के द्वारा जो वो मुझे सेवकाई दे रहा है और मुझे तैयार कर रहा है। I want to say a few things before we just get into the word. और इस वचन के अंदर जाने से पहले कुछ चीजों को बांटना चाहता हूँ। And that is, saints, that days are difficult days if you are a true child of God and want to pursue this calling in Christ Jesus. कि आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल के दिन होने वाले हैं अगर आप वास्तविकता के अंदर परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उसके उद्देश्य में उन्नति करना चाहते हैं तो। You know, I know that when God's word comes in His mercy and in His love to us, several believers, brothers and sisters, they are careless in their lives. They have not been serious to God's counsels, and I've seen what happened with several of them. और मैंने देखा है कि परमेश्वर की असीम करुणा और प्रेम के कारण जब उसका वचन हमारे बीच में आता है तो हमारे में से कई भाई और बहन बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं रहते उन वचनों को थामने के लिए, उसका पालन करने के लिए। They are careless with God's word. वो लापरवाह हो जाते हैं परमेश्वर के वचनों के And they are not serious with that counsel that God is giving to them. और परमेश्वर की सलाहों के प्रति वो गंभीर नहीं होते। And some of them have withdrawn from this walk in Christ. और कई इस चाल के अंदर डूब जाते हैं। And they have deviated from this straight and narrow path. और वो इस सीधे और सकरे मार्ग से भटक जाते हैं। You know, and
it's so sad to see where some of them are today, spiritually and otherwise. और ये बहुत दुख की बात है अगर हम आज उनके जीवन को देखेंगे कि आत्मिक रूप से और दूसरी तरफ से वो कहाँ पर आज हैं. Some of them who had left many things in their lives, they have now gone back to those very things they at one time left behind when they came to Jesus Christ. It's so sad. कुछ व्यक्ति जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो कई चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में छोड़ दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान समय में वो दोबारा से उस पुरानी चीज़ों के अंदर चले गए थे जिसको उन्होंने छोड़ा था एक समय में. You know, the reason for that is they have not been serious with the word that God had spoken to them, and they have not been serious with this call unto which the Lord has brought them by their salvation experience. और इसका कारण ये है कि समय समय पर परमेश्वर ने जो जो वचन उनको दिए थे उसके प्रति वो गंभीर नहीं रहे, उसका पालन नहीं करा और उसको सावधानी के साथ संभाला नहीं. Saints, this word that God has spoken to us and continue to speak to us is a serious word, and only those who are serious will respond to this word. और जो वचन परमेश्वर ने हमारे मध्य में दिए हैं और आने वाले दिनों में भी इन वचनों के द्वारा जो वो हमारी सेवकाई करेगा, लेकिन अगर हम अपने जीवन में जब गंभीर बनेंगे तभी हमारे को इन वचनों के द्वारा फायदा होगा. If you are not serious in this call and you are not serious to that which the Lord is speaking, I am afraid what will happen in the days to come. और अगर हम अपने जीवन के अंदर गंभीर ना बने वो सारे वचनों के प्रति जो परमेश्वर हमारे को दे रहा है, तो आने वाले दिनों में हम कैसे रहेंगे मैं सोच नहीं सकता. Saints, another cannot walk for you. और कोई दूसरा आपकी जगह चल नहीं सकता. Another cannot take those trials, those testings, those experiences you ought to come in yourself in Christ. आपकी जगह कोई दूसरा जना परीक्षाओं में और कठिनाइयों में नहीं जा सकता. आपको स्वयं उस अनुभव में, उस परीक्षा में स्वयं जाना है. This growth is something that you ought to come in your own life, and I ought to come in my own life. और ये आत्मिक उन्नति आपने व्यक्तिगत रूप से खुद करनी है और दूसरे व्यक्ति ने खुद अपने जीवन में करनी है. So there is nothing that we can give to one another in that sense. और दूसरे शब्दों में हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं है. We can be an encouragement, and we don't, we can be a strength to other believers. हम एक दूसरे को उत्साहित तो कर सकते हैं, उसको मजबूत तो कर सकते हैं. We can pray for one another. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. You know, but we cannot walk for one another. लेकिन हम एक दूसरे के स्थान के ऊपर चल नहीं सकते. You know, we ourselves we have to walk this way ourselves. हमने व्यक्तिगत रूप से स्वयं इस बुलाहट के अंदर चलना है. Your struggles are there for you, and you need to seek the Lord. Others can pray, others can encourage, others can motivate, but you yourself will have to choose to be victorious, to overcome and progress on in this life. आपके सारे संघर्षों में, परीक्षाओं में दूसरे आपको सलाह दे सकते हैं, आपको उत्साहित कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपने स्वयं इन सब चीजों के ऊपर चलना है और विजय का अनुभव करना है. So saints, the time is come for all of us to take on responsibility and be serious in our everyday walk with the Lord. क्योंकि प्रियो समय आ गया है कि हम व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो जाएं अपनी इस चाल के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है. You know, perhaps in your life you haven't faced much great struggles of faith yet. और हो सकता है आपने अभी तक अपने इस जीवन के अंदर इस विश्वास के अधिक संघर्ष का सामना The times have been not so hard, and perhaps the times have been easy. और हो सकता है कि बहुत ही
कड़ा समय आपके ऊपर नहीं आया हो, बल्कि आराम से आपका जीवन चल रहा हो, but there is no guarantee that things would continue the way they are and they have been. लेकिन इस चीज की कोई संभावना नहीं कि आपका जीवन बिल्कुल सरलता के साथ ही चलता चला जाएगा। So may God help all of us. इसलिए परमेश्वर हम सब की सहायता करे to be serious with the Lord and with this call that is resting upon us. कि हम परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाएं और इस बुलाहट के प्रति जो हमारे ऊपर ठहरी हुई है गंभीर हो। Now let's just turn to Hebrews chapter 10 and verse 35. और इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय और 35वां Cast वचन। not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward, for ye have need of patience. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। Now we heard very clearly from the first session और पहली सभा से हमने स्पष्ट रूप से सुना that this letter was written to Hebrew believers, कि इस पत्री को लिखा गया इब्रानी के विश्वासियों को, and these believers had a wonderful, splendid beginning in Christ. और इन विश्वासियों की बहुत ही अद्भुत रीति से शुरुआत हुई, Tremendous beginning in the Lord. बहुत ही एक अच्छे तरीके से परमेश्वर में शुरुआत हुई। They went through much persecution and suffering right at the beginning when they turned to the Lord. और शुरू में ही वो बहुत ही सतावे और संघर्ष और परीक्षाओं में से गुजर के निकले। And we heard that they became a gazing stock. और हमने ये भी सुना कि वो एक ऐसे व्यक्ति बन गए जिनको देखकर लोग हंसते थे। Both by reproaches and by afflictions. और लोग उनकी निंदा करते थे और उनके ऊपर नुक्ताचुनी करते थे। After they were illuminated in their lives, उस समय से जबकि उनका जीवन प्रकाशवान हो they गया, endured a great fight of afflictions in their lives. उन्होंने एक विश्वास की बहुत ही कुश्ती लड़ी। But now they are in a position and place where things are not as it was with them in the past. और लेकिन इस समय वो अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि चीजें वैसी नहीं जैसी पहले थी उनके जीवन में। But now they have come into a place, this long drawn battle, this long drawn struggle situations began to set in a weariness in their hearts. और हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर लगातार जो ये संघर्ष बना हुआ था, लगातार परीक्षाएं बनी हुई थी, लगातार वो दुखों और कलेशों से गुजर रहे थे, इन सब चीजों ने उनको थकाना शुरू कर दिया। A kind of weariness as to why this is going on, Lord, why you do not come in to my situation, और उनके मन के अंदर एक प्रश्न उठने लग गया कि कितना अधिक जीवन इन्हीं संघर्षों में, परीक्षाओं में निकलता चला जा रहा है। परमेश्वर तू क्यों नहीं आ रहा? I know and I have heard from many others. और मैं जानता हूं और मैंने दूसरों से भी सुना, when we came to the Lord, और जब हम परमेश्वर के पास आए थे, in that times of the first love with Christ, और परमेश्वर के प्रति जब हमारा प्रथम प्रेम था, there was such a joy even in those sufferings, और उन परीक्षाओं में गुजरते हुए हमारे अंदर एक बहुत ही असीम खुशी और प्रेम था। in those rejections, उन सारे तिरस्कारों के अंदर भी, in those difficulties, उन सारी मुश्किलों के अंदर भी, whatever little that was, चाहे वो कितनी भी छोटे रूप में थी, you had no
fear of your future. और आपको अपने भविष्य की कोई भी चिंता नहीं I've है। heard people say, और मैंने ये भी सुना है लोगों को, even if I don't get married, it's all right. अगर मेरा विवाह भी ना हो तो कोई चिंता नहीं। And that's one thing that people are worried about in GSF. और GSF में इस बात के लिए लोग अधिक You know, there are people who said, I'm not worried about my future. और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा मैं अपने भविष्य But की चिंता नहीं as करता। years began to go by, लेकिन जैसे वर्ष बीतने लग गए, those very people who said, I'm not worried about my future, began to worry about their future. उन व्यक्तियों ने जिन्होंने एक समय में कहा था कि हमें भविष्य की चिंता नहीं है, I'm not worried about what job I will take up. और मेरे को इस बात की चिंता नहीं कि मैं All कौन सी that नौकरी I लूंगा। need is Christ and Christ alone in my life. और मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, मसीह और मसीह ही सिर्फ अपने जीवन में। What matters to me is His relationship with the और Lord. क्या चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, And ये as संबंध, रिश्ता, The years सहभागिता। began to pass by. लेकिन जैसे सालों ने बीतना शुरू कर That दिया, which were not concerns in their lives और जो चिंता का विषय नहीं थे उनके जीवन began में, to show up as concerns now. और वो उभर कर आने लगे उनके जीवन में, Now, चिंता के saints, विषय में। may I share this with all my heart. और जो मैं आपको एक बता रहा हूं अपने संपूर्ण हृदय से, You know, this life is full of challenges. और ये जीवन है, ये चुनौतियों से भरा हुआ है, You know, and it's a long drawn walk with the Lord. और ये एक बहुत ही लंबा रास्ता है, मार्ग है, चाल है परमेश्वर And में। that's where we begin to feel the heat and the weariness in our hearts. क्योंकि ये मार्ग बहुत लंबा है, तभी हम इसकी गर्माहट को, मुश्किलों को अनुभव करने लगते हैं। Now I know that you would bear a witness to what I'm saying. और मैं जानता हूं कि आप ही आत्मा में इस चीज को एक मानेंगे। Yes? No? Yeah. It's a reality, saints of और God. ये वास्तविकता है। You know, that's why the Hebrew writer says, cast not away your confidence. और इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि अपने हियाव को ना छोड़ो। The confidence you confessed, the confidence in which you walked when you came to know the Lord. वो आपका विश्वास और आशा जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और उसे स्वीकार किया था और उसका अंगीकार करा था, That confidence, my Lord, is my sufficiency. और परमेश्वर में ये भरोसा ही आपकी पर्याप्तता था। You know, saints, as the days go by, there is always this struggle in the flesh, this struggle in the natural man. और जैसे जैसे दिनों ने, महीनों ने, सालों ने बीतना शुरू कर दिया, हमने देखा शरीर के अंदर ये संघर्ष लगातार बढ़ता चला गया। Cast not away your confidence, therefore. इसलिए आप अपने हियाव को, भरोसे को ना छोड़ें। Now, there are so many things that God has spoken to our hearts. और बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे हृदय से And करी, I know that we haven't got time to get into all that again. और मैं जानता हूं उन सब चीजों को दोबारा दोहराने के लिए समय नहीं। One thing is very clear, that as the days go by, we are going to be tried, we are going to be tested at every stage and at every step. और एक चीज को मैं जानता हूं कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, Yes. हर एक मोड़ के ऊपर हमारी परीक्षा होगी, हमारी परख होगी, हमें परखा जाएगा। As we heard yesterday, और जैसे हमने कल सुना, temptation is not sin. परीक्षा पाप नहीं है, It's another word for trial in our life. और ये एक परखने का दूसरा शब्द है। So in our lives we would go through many trials. और इसलिए हम काफी अपने संघर्षों में इस जीवन में बीतेंगे। And it is in those moments of our trials we are tempted to cast away our confidence. और जब हम विभिन्न परीक्षाओं से होकर गुजरेंगे, तभी हमें ये परिस्थिति का सामना होगा कि हम इस विश्वास को और हियाव को छोड़ें। You know, that's the time we are tempted, we are drawn by the enemy to that place to cast away our confidence. और इन परिस्थितियों से गुजरते हुए ही शत्रु इस प्रकार से हमें लुभाएगा कि हम अपने विश्वास को छोड़ दें या कमजोर हो जाएं। Now, as I said, many a time we feel we are strong in the Lord. कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर में हम मजबूत हैं,
But how strong we are can only be proved in the midst of situations. और आप प्रभु में कितने दृढ़ और मजबूत हैं, इसकी परख जब आप परीक्षाओं से गुजरते हैं तब पता चलती है। And that's where we see as to where we are spiritually in our lives. और तभी हमें पता चलता है कि आत्मिक रूप से हम कहाँ पर ठहरे हैं। You know, and we have seen in God's word, और परमेश्वर के वचनों में हमने देखा, you know, the word of God makes very clear there are chances for us to be getting offended because of Him. और वचन में जैसे हमने पढ़ा कि हमारे जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं कि परमेश्वर के कारण हमें ठोकर लगे। You know, the scripture doesn't say that we shall not be offended at all, but it says clearly again and again there are chances for us to be offended because of Him. और वचन ये नहीं कहता कि हमारे को ठोकर नहीं लगेगी, लेकिन वचन ये कहता है कि संभावनाएं हैं उसके कारण हमें ठोकर लगे। Now this is something again we ought to really receive into our hearts by the help of the Holy Spirit. और इस चीज को हमने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से ग्रहण करना है। Now turn with me again to Matthew chapter, the book of Matthew. मत्ती की पुस्तक Chapter 26, और उसका 26वां verse 31. 26वां अध्याय और 31वां वचन Verse 30. और तीसरा वचन। And when they had sung a hymn, they went out into the Mount of Olives. और फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me. तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। All ye shall be offended because of me this night. तुम सब आज रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। Verse 33. और 33वां वचन। Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। Now we see that's very, very clearly written in God's word. और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, All ye shall be offended. और तुम सबको ठोकर लगेगी। They could never accept. लेकिन इस चीज को वो मान नहीं सके। They could never accept that they will be offended because of him. और वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर सके कि उसके कारण वो सब ठोकर खाएंगे। But the Lord made it very, very clear to them. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को बहुत स्पष्ट कर दिया उनको। And Peter very clearly said, though all these guys around me can do that, but I will never. और पतरस ने कहा कि सारे तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। Saints, this is very true. और प्रियो, ये बहुत सच है। Even today in our lives, आज भी हमारे जीवन में it may be very, very difficult for me and for you to accept that such a thing could happen. और ये मानना और स्वीकार करना हमारे अपने जीवन में मुश्किल हो सकता है। You know, but I wish to say to us, there is a danger of being offended. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक खतरा है ठोकर खाने की वजह And से। that's what the maker of our lives would say to us. और हमारे जीवन को बनाने वाला हमें वही चीज बताना चाहता है। He knows our frame. वो हमारी सारी रचना को जानता है। He knows what is in man. और वो जानता है मनुष्य के अंदर क्या है। And it is good to take this warning in our lives. और ये अच्छा है कि हम जो वो हमारे को सावधानी दे रहा है That उसको when ग्रहण करें। that occasion or time comes,
we may not succumb to it and may not get offended in our lives. ताकि जब वो समय आए और हमें ठोकर लगे तो हम गिरे नहीं और उस परीक्षा के अंदर गिर न जाएं। We have seen the example yesterday of John the Baptist. और कल भी हमने यूहन्ना के उदाहरण को देखा। We saw the example of Elijah and Elisha last night. और हमने एलिया और एलीशा के उदाहरण को भी कल रात को देखा। We thank God for every input the Holy Spirit has wrought into our hearts in and through that word. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के माध्यम से वो सब कुछ बातें परमेश्वर ने जो हमारे हृदय के ऊपर उभार दी और एकत्र कर दी। Now let's just turn again to that portion. और उस पुस्तक को हम दोबारा देखेंगे, Matthew chapter 11. और मत्ती उसका 11वां अध्याय। Matthew chapter 11. मत्ती 11वां अध्याय। Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said unto him, Art thou he that should come and do, or do we look for another? Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And then he adds this very important scripture word, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. 2 से 5 वचन को क्या? Yeah. So in verse 6, you can read verse 6 to save time. 6ठे वचन के अंदर लिखा है, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। And blessed is he whosoever shall not be offended in me. और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। Now let's just come back again to the scripture और वचन के पास हम दोबारा to आए see a little more about this situation where John was. और इस परिस्थिति को गंभीरता के साथ निकटता से देखें जहां पर यूहन्ना था। You know, now he is in prison. वो अब बंदी गृह में है। John was utterly given to prepare the way for Christ. और हम देखते हैं यूहन्ना ने अपने आप को संपूर्ण रीति से दे दिया था मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए। You know, he poured out himself उसने अपने आप को उड़ेल दिया था into the interests of Christ. प्रभु यीशु मसीह की सारी रुचियों और उद्देश्यों के अंदर। He devoted himself so much. उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था He उसके लिए। said, Behold the Lamb of God. और उसने कहा, देखो परमेश्वर के मेमने को, Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. देखो परमेश्वर के मेमने को जो संसार का सारा पाप लेके जा रहा है। He also said, There cometh one after me, और वो ये भी कहता है कि मेरे बाद एक आने वाला the है latches of whose shoe I am not worthy to unloose. जिसके जूतों के तस्मे भी मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। He also said that I may decrease and he may increase. और उसने ये भी कहा कि मैं घटता चला जाऊं और वो बढ़ता चला जाए। You know, here we find the utter devotion of John unto Christ. और यहाँ पर हम पाते हैं यूहन्ना का कितना गहरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह के लिए। A devotion unto his rejection and to the acceptance of the Messiah. और इतना अद्भुत समर्पण जहां पर उसका स्वयं का तिरस्कार होता चला जाए और प्रभु यीशु मसीह की स्वीकृति होती चली जाए। And now the same man, John, और यहाँ पर वही व्यक्ति यूहन्ना, he is thrown in prison. उसको एक कारागार में डाल दिया गया है। As we heard yesterday, और जैसे हमने कल सुना, his ministry was cut off. उसकी सेवकाई को रोक दिया गया था। His popularity was suspended, if not ended at that point. उसकी प्रसिद्धि को स्थगित कर दिया था, खत्म नहीं भी हुआ तो। And the whole thing is that God seems to be doing nothing about his present situation. और ऐसा लगता है कि उसकी वर्तमान परिस्थिति के अंदर परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा।
You know, and when John sent his disciples unto the Lord, और जब यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा, and when the Lord sent the reply through them to John, और जब प्रभु यीशु मसीह ने इन शिष्यों के द्वारा उस उत्तर को भेजा, he told him all the wonderful things which are happening in and through the ministry of Jesus Christ. और उसने ये भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के द्वारा जो अद्भुत और महान कार्य हो रहे हैं, Tremendous and great things are happening. अद्भुत और महान चीजें हो रही हैं, You know, people are being healed of all kinds of sicknesses. और मनुष्य अपनी सारे रोगों से चंगाई पा रहे हैं, The dead are being raised up. और मृतकों को जिंदा करा जा रहा है, The lepers are being cleansed. और कोढ़ी चंगे हो रहे हैं। You know, all these great things these disciples are now going to tell to John, who is in prison. और इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन वो यूहन्ना के शिष्य जाकर यूहन्ना को All these करने वाले, good reports he is going to receive from these disciples. और अपने शिष्यों से वो ये सारी अच्छी बातों को सुनने वाला है। And when all these reports are heard by John, और यूहन्ना जब अपने शिष्यों से इन सारी चीजों को सुनेगा, there could arise some questions in the heart of John. और तब Listen carefully. तब ये संभव है कि यूहन्ना के मन के अंदर कुछ विचार और प्रश्न उठे। John, you know, the Lord could identify the state in which John was. और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यूहन्ना के साथ जोड़ सका उस Saints, परिस्थिति में जिसमें when वो we था। go through situations, circumstances, और प्रियो, जब हम भी परीक्षाओं में, वातावरणों में और परिस्थितियों से गुजरते हैं, I want to tell you, God knows where exactly we are. परमेश्वर जानता है वास्तव में हम कहाँ पर हैं। Many a time men do not understand us. कई बार मनुष्य हमें समझ नहीं पाते, But I can tell you one thing, saints, you have a father who understands you well. लेकिन प्रियो, हमारे पास एक पिता है जो हमें भली भांति जानता है। It's not because, you know, we are prejudiced towards our brothers and sisters in Christ. और ये नहीं कि हमारी अपनी एक विचारधारा है हमारे भाई और बहनों के लिए, You know, that we are upset with them. That's not the issue. और ये नहीं कि हम उनसे बहुत ही बुरा समझते हैं या वो ठीक नहीं But लगता what है। I'm trying to put across to us is, लेकिन क्या मैं कहना चाहता हूँ आपको we have a father who understands us. कि हमारे पास एक पिता है जो हमें भली भांति जानता And the है, Lord Jesus could understand John's present condition. और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की वर्तमान परिस्थिति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सका। Now here is John in this condition. और यहाँ पर यूहन्ना है उस कारागार में, Now these disciples are going to come and tell all these good things which are happening. और उसके शिष्य ये जो सारे अद्भुत और महान कार्य हो रहे हैं इसका वर्णन उसको करेंगे। And in the heart of John there could be many questions. और यूहन्ना के मन के अंदर हो सकता है बहुत प्रश्न You know, उठे। it's when you go through trials of faith in your life, you begin to have questions. और आपके विश्वास की जब परीक्षाएं होती है, जब आप परिस्थितियों से गुजरते हैं, तभी आप देखेंगे आपके मन में बहुत प्रश्न उठते Maybe हैं। there could be questions in the heart of John. और हो सकता है यूहन्ना के मन में भी बहुत प्रश्न हो। Okay, he is healing the sick. हाँ, ठीक है कि वो बीमारों को All चंगा कर kinds रहा of है, sicknesses are being healed. हर प्रकार की जो रोग हैं उनका निवारण हो रहा है, The demons are being cast out. और शुद्ध आत्माओं को बाहर निकाला जा रहा है, You know, the dead is raised back to life. और मृतकों को जिलाया जा रहा है दोबारा जीवन में। Wonderful. बहुत ही अद्भुत है। Yes, हाँ, that's great. और ये बहुत ही महान है। But लेकिन why doesn't he do something about my situation? लेकिन वो मेरी परिस्थिति के लिए कुछ नहीं क्यों नहीं करता? Why doesn't he do something about my situation? लेकिन वो मेरी परिस्थिति के लिए कुछ ना कुछ क्यों नहीं करता? I am alone here in this place. और इस जेल के अंदर कारागार में मैं तो अकेला हूँ, He is doing it for everyone out there, और वो बाहर बहुत सारे लोगों के लिए सब कुछ कर रहा है, but not for me. लेकिन मेरे लिए नहीं। A lot of people are getting his blessing. और बहुत सारे लोग
उससे आशीष पा रहे हैं। A lot of people are receiving good from his hands. और प्रभु के हाथों से बहुत लोग एक अच्छे चीज को प्राप्त कर रहे हैं। I am left out. लेकिन क्या मुझे छोड़ दिया गया है? Amen. How easy it is to get offended. कितनी आसानी से हम ठोकर खा सकते हैं। Saints, when the Lord said these words to the disciples and told them, go and tell these things, then he said, blessed is the one who shall not be offended. और जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के शिष्यों से कहा ये सारी चीजों का वर्णन तुम जाके यूहन्ना को करो, तब उसने छठे वचन में कहा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। Yes. The only one now left out and overlooked is me. और सिर्फ एक ही छोड़ा गया और जिसको नजरअंदाज कर दिया गया वो तो मैं हूं। And you know that और आप जानते हैं, the Lord never visited John in the jail. और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से जेल में मिलने नहीं गया। You know that when you and I go through some little trial, the first thing is that कोई बुलाया नहीं अभी तक, और हम जानते हैं फोन भी नहीं किया। हमारे जीवन में जब हम दुखों से गुजरते हैं, परीक्षाओं से गुजरते हैं, तब हम कहते हैं किसी ने हाल चाल भी नहीं पूछा। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया फेलोशिप है, ये बहुत अच्छी सहभागिता है। क्या फेलोशिप है? बहुत बड़ी अभी तक कोई फोन कॉल भी नहीं आया। क्या फेलोशिप है? एक बार भी किसी ने फोन नहीं करा। You know. और आप जानते हैं, Are you with me? क्या आप हमारे साथ हैं? How true that is. और ये कितनी सच्चाई And है। here was John. और यहाँ पर यूहन्ना है। Everyone is receiving all these blessings at his hand, but here I am, the one who introduced him, the one who spoke about him. So much I was devoted to him, and I was willing that he may increase and I may decrease. But here I am. He never even came to visit me so far. और यहाँ पर मैं देखता हूँ यूहन्ना कह रहा है कि सारे लोग परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं, Yes. अच्छी चीजों को पा रहे हैं, और ये मैं ही था जिसने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को लोगों के ऊपर प्रकट करा, उसके बारे में बताया, और वो मेरी कोई चिंता नहीं कर रहा। The Lord knows our frame, saints of God. और लेकिन परमेश्वर हमारी The पूरी Lord रचना को knows जानता our है, frame. और परमेश्वर जानता है कि हम कैसे बने हुए हैं। And so we see very clearly the Lord putting in that scripture there, that word, that blessed is the one who shall not be offended because of me. और The यहाँ blessedness of the unoffended. और यहाँ पर परमेश्वर ने इस वचन को रखा है और कहा है, धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं, और ठोकर ना खाने से जो आशीष परमेश्वर ने उसमें रखी है वो अद्भुत है। You know, as I was meditating upon these portions, और इन वचनों के ऊपर जब मैं मनन कर रहा था, I just wanted to know what other men will have to say about this situation of John. और यूहन्ना की इस परिस्थिति के बारे में दूसरे लोगों के क्या विचार हैं। And I was searching and referring to other men. और मैं दूसरे संतों की खोज कर रहा था कि उन्होंने इस विषय में क्या लिखा है। One of the men, he says like this. और एक मनुष्य इस प्रकार से कहता And I है, would like to just read that. और मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। And this is what he says. और ये वो कहता है, John's doubt might arise from his own present circumstances. और यूहन्ना के जो भी संदेह और शक वो उठ सकते थे उसकी वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जिसमें वो था। He was a prisoner और वो कारागार में बंदी था, and might be tempted to think, और हो सकता है उसके ऊपर परीक्षा आए ये सोचने के लिए, if Jesus be indeed the Messiah, अगर मसीह निसंदेह मसीह है, यीशु मसीह, whence is it that I, his friend and forerunner, am brought into this trouble? और मैं जबकि उसका एक मित्र हूँ और उसके आगे दौड़ने वाला हूँ, Yes. और मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई है, And am left to be so long in it,
और मेरे को छोड़ दिया गया है इतने अधिक समय के लिए, and he never looks after me, और वो मेरी देखभाल नहीं करता, never visits me, और मेरे पास मिलने के लिए भी नहीं आता, nor sends to me और ना कोई संदेश inquiries, भेजता, और ना किसी के माध्यम से मेरे बारे में हालचाल पूछता, not after me. और ना ही मेरी तरफ आता या मेरे There's लिए। nothing either to sweeten my imprisonment, और उसके गाहों के ऊपर कोई भी मल्लम नहीं लगाता उस जेल के अंदर, or hasten my enlargement. और उसके छुड़ाने के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता। This is what the man of God says. और ये परमेश्वर के संत ने कहा। So John's could have construed in his mind that this was a neglect. और यूहन्ना यहाँ पर अपने मस्तिष्क में निष्कर्ष निकाल सकता था कि उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। That present situation perhaps was a shock to John. और जो वर्तमान परिस्थिति थी वो यूहन्ना को हैरान करने वाली थी। And the man of God goes on to say, और परमेश्वर का संत कहता है आगे and I भी, quote here now again, और उसके शब्दों को मैं बताता हूँ, where there is truth, और जहाँ कहीं सच्चाई listen होती है, carefully, ध्यान से सुने, where there is truth, और जहाँ कहीं सच्चाई है, yet there may be a mixture of unbelief. और वहाँ पर अविश्वास का मिश्रण भी हो संभव है। Amen? Listen carefully. ध्यान से सुने, Where there is true faith, और जहाँ पर एक सच्चा विश्वास है, where there is true faith, और जहाँ पर एक सच्चा विश्वास होता है, yet there may be a mixture of unbelief. और वहाँ पर संभव है कि एक अविश्वास का मिश्रण हो। And this is what he says. और ये वो कहता है, The best are not always alike strong. और जो सबसे अच्छे होते हैं वो ये नहीं कि वो मजबूत भी हो। He continues, और वो लगातार बढ़ रहा है। troubles for Christ, और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो मुसीबतें आई, especially when they continue long unrelieved, are such trials of faith as sometimes prove too hard. और जब वो लगातार उन परीक्षाओं से उनके विश्वास की परख होती चली गई और उनको कोई छुटकारा नहीं मिला उन परिस्थितियों से, परीक्षाओं से, Prove too hard to be borne up against. और तब उन्हें लगने लग गया कि इन सारी चीजों को सहन करना बहुत ही मुश्किल और कठोर है। The unbelief of good men sometimes in an hour of temptation strike at the root. That's what he says. अच्छे लोगों का, Listen very carefully. अच्छे लोगों का अविश्वास उन परिस्थितियों के अंदर उनकी नींव को हिलाता है। I will read that again. और दोबारा मैं पढ़ूंगा। The unbelief of good men may sometimes in an hour of temptation strike at the root. अच्छे लोगों का अविश्वास परीक्षाओं के समय में उनकी नींव को छू जाता है And call in question और उनके the most fundamental truths which were thought to be well settled. How true that is. और इन परिस्थितियों के अंदर उनके मन के अंदर ऐसे प्रश्न आने Listen लगते carefully. हैं Yeah. कि जो आधारभूत बातें उन्होंने एक समय में स्वीकार करी थी Yes. और मान ली थी, उन चीजों के बारे में वो प्रश्न करने लगते हैं। Question the most fundamental truths. और जो मुख्य आधारभूत बातें हैं उसके विषय में वो प्रश्न करने लगते Which हैं were thought to be well settled in life. और जिनको सोचा गया कि उनके जीवन में ये बहुत ही गहरी हो गई है। Amen. What a warning that is to all of us. और कितनी ये गंभीर चेतावनी है And हमारे लिए। as we heard a week back in the house of God in Delhi, और एक सप्ताह पहले जैसे दिल्ली की सभा में हमने this is what सुना, happened with Elijah.
और इस प्रकार से एलाइजा के जीवन में हुआ। Suddenly that unbelief arose. अचानक ही उसके मन के अंदर एक अविश्वास आ गया। And you see how it hit the root? और किस प्रकार से उस अविश्वास ने उसकी जड़ों को हिला The दिया। man of the testimony of life is now saying, it's better I die. और वो जीवन की गवाही देने वाला इस समय बोल रहा है, ये अच्छा हो मेरे लिए कि मैं मर जाऊं। He challenged death, he challenged the darkness. उसने अंधकार को ललकारा, उसने बेल के सारे झूठे भविष्य वक्ताओं को चुनौती दी। The man of the testimony of life now says, Lord, I'm not good and better than my fathers. Please help me. Take me off and let me die. वो इस जीवन की साक्षी देने वाला अब यहाँ पर एक ऐसे मोड़ के ऊपर आ गया है जो वो परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर, मैं कोई भी मेरे अंदर अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छा है तेरे लिए कि तू मुझे मार दे और मेरे जीवन का अंत कर दे। परमेश्वर के लोगों, you understand what the Lord is saying? क्या आप समझ रहे हैं कि What a परमेश्वर क्या serious कह रहा है? word that is to all of us. और हम कहाँ पर हैं? हमारा Who क्या among मतलब है? can ever say that I will never be offended? हमारे में से कौन ऐसे कह सकता है कि हमें कभी भी ठोकर नहीं लगेगी? There are chances. क्योंकि संभावनाएं हैं। And that's why we ought to be careful in our walk with the Lord. इसलिए हमने अपने जीवन के चलन में बहुत ही सावधान और सतर्क होना है कि हमारा विश्वास कम ना हो जाए, याद छोड़ ना दे। Let me just read on what the man of God says. परमेश्वर का संत क्या कहता है उसको पढ़ेंगे। और And he says, will the Lord cast off forever? क्या परमेश्वर हमेशा के लिए मुझे त्याग देगा? But we will hope लेकिन that John's faith did not fail in this matter. लेकिन हमें आशा है कि यूहन्ना का विश्वास असफल नहीं होगा इस विषय में। And we know that John was not offended. That's something to be praised, to praise God. और हम जानते हैं कि यूहन्ना का विश्वास असफल नहीं हुआ। But he was very weak at that moment, no doubt. लेकिन उन परिस्थितियों से गुजरते हुए वो काफी He was कमजोर हो गया going through था। a great battle and struggle deep within. वो अपने भीतर मनुष्य के अंदर इन चीजों से गुजरते हुए बहुत ही संघर्ष के अंदर, मुसीबतों में, दुखों में गुजरा। And so the man of God says here, और इसलिए परमेश्वर का संत कहता है, the best saints have need the best helps in such moments. और जो सबसे अच्छे जो परमेश्वर के संत होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी सहायता की जरूरत होती The है। best saints have need of the best helps. और जो सबसे अच्छे संत होते हैं उनको परीक्षाओं के समय में बहुत ही अधिक सहायता की, अच्छी सहायता की जरूरत होती है। Amen. We all need. I need help. हम सबको आवश्यकता है, How जरूरत much है I've been सहायता की। saying that in the house of God. और दिल्ली की कलीसिया में कितनी बार मैं इस चीज को बोलता And हूँ। almost every Sunday I've been saying this to God's people. I need prayer. I need help. और हर संडे को, रविवार को मैं दिल्ली के अंदर सारे संतों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को आवश्यकता है प्रार्थना की, मेरे लिए You know, प्रार्थना many करो। a time the saints of God think, oh, these men preachers, they don't need any help. They are great men. और कई बार They are not great. हम सोच सकते हैं कि ये प्रचारक तो बहुत ही ऊंचे लोग हैं, उनको किसी सहायता की जरूरत नहीं, They don't need any help. उनको कोई मदद की That's जरूरत नहीं। wrong, saints of God. लेकिन वो गलत विचारधारणा है। They need much prayer. वो उनको आवश्यकता है बहुत अधिक Their प्रार्थना trials की। are much different from your trials many a time. उनकी परीक्षाएं और संघर्ष बहुत ही विभिन्न तरीके के हैं जिससे आप The गुजरते हैं। best saints have need of the best helps. जो सबसे अच्छे जो परमेश्वर के संत हैं उनको भी बहुत अच्छी सहायता की जरूरत They है, can get for the strengthening of their faith. और उनको ये सहायता अपने विश्वास में मजबूत होने के लिए चाहिए। Sometimes I tell brothers, कई बार मैं भाइयों को बोलता हूँ, brother, please write emails. और मैं कहता हूँ मुझे ईमेल से आप लिखें। अरे यार, आपको क्या जरूरत है? और हम कह सकते हैं आपको क्या जरूरत है, हमारे ईमेल से क्या आपको क्या फर्क पड़ेगा? हमारी ईमेल से आप What difference will that make to you?
And I want to tell you that one line that you write strengthens my faith. हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ Encourages me. कि अगर आप एक ही लाइन लिखते हैं अपनी तरफ से, वो मेरे लिए उत्साह का विषय बनती है। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, as much as you need encouragement and strength for strengthening your faith, I need it, we need it. और जिस प्रकार से आपको विश्वास में बने रहने के लिए सहायता की जरूरत है, मुझे भी उसी तरह से जरूरत है सहायता की। And the man of God says like this here, परमेश्वर का संत यहाँ पर कहता है, you know, the best saints have need of the best helps they can get for the strengthening of their faith and the arming of themselves against temptations to infidelity. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अच्छे संत हैं उनको और अधिक अच्छी सहायता की जरूरत है ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके उन सारे आक्रमणों का सामना करने के लिए। So saints of God, इसलिए परमेश्वर के संतों, it's very, very clear in God's word और परमेश्वर के वचन के अंदर ये स्पष्ट है that John was in a situation where he was really being tried. और यूहन्ना एक ऐसी परिस्थिति के अंदर था जहां पर उसकी बहुत परीक्षा हुई। Now, one thing that encourages me about John here is, और यहाँ पर एक चीज यूहन्ना की मुझे उत्साहित करती turn है, again to the book of Matthew 11. और मत्ती उसका 11वां अध्याय। You know, the Lord knew that John needed that word to strengthen his faith और प्रभु यीशु मसीह and को stand firm. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि यूहन्ना को उस शब्द की जरूरत है कि वो अपने विश्वास के अंदर बना रहे और उसे शक्ति मिले। And I see the tremendous wisdom of the Lord Jesus here. और मैं परमेश्वर की अद्भुत समझ और बुद्धि को यहाँ And पर पाता the हूँ। scripture, following scripture, make it very clear that John did not, get offended. और यहाँ पर जो और वचन लिखे हुए हैं वो स्पष्ट करते हैं कि यूहन्ना को ठोकर नहीं लगी। And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John. और जैसे वो शिष्य उसके पास से चले गए, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से यूहन्ना के विषय में बातचीत करना शुरू करा। And as they departed, और जैसे वो चले गए, not in the presence of these disciples, उन शिष्यों के सामने नहीं, but as they departed and went away, और जैसे यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु मसीह से Jesus चले began गए, to say unto the multitudes concerning John, और प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से यूहन्ना के विषय में बातचीत what करना शुरू went करी। ye out into the wilderness to see? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? A reed shaken with the wind? क्या उस सरकंडे को जो कि हवा से हिलता है? But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in the king's houses. तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो राजभवनों में रहते हैं। But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. So we see here these wonderful words of the Lord. और यहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत शब्दों को हम देखते Now हैं। there is much I won't get into, but just one thought I want to make mention. यहाँ पर बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन एक विचार It में says बोलूंगा। here, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with wind? कि तुम जंगल में क्या देखने के लिए गए? क्या उस सरकंडे को जो हवा से हिलता In है? other words, the Lord says, what ye went out to see? A man, a wavering man? क्या उस जंगल में आप देखने गए? क्या उस ऐसे मनुष्य को जो कि परिस्थितियों में इधर उधर बदलता रहता है? You went out to see a wavering voice? क्या तुम बदलने वाली आवाज को देखने गए, सुनने गए? You know, the words of the Lord
really meant here was John wasn't a man wavering with many ideas in his mind. और यहाँ पर मसीह ने एक चीज को स्पष्ट कर दिया कि यूहन्ना ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन के विचार लगातार परिस्थितियों में बदलते चले जाएं। He spoke about John as one who is so faithful and devoted and focused. और मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जो कि संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित है, आज्ञाकारिता में है और परमेश्वर के लिए दिया हुआ है। What went he out in the wilderness to see? A reed shaken with the wind? तुम जंगल में क्या देखने गए? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? And he says he wasn't a reed shaken in the wind. और उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो सरकंडा नहीं है जो हवा में हिलता John है। was a firm person. और वो एक स्थिर मनुष्य था He was so resolute. और उसने दृढ़ संकल्प कर He रखा was था। not a reed shaken with the wind. और वो सरकंडा नहीं था जो हवा से हिलता रहता इधर उधर। He is not one who was just, blowing cold and blowing hot for every thought that comes into him. और वो एक ऐसा मनुष्य नहीं था कि जो कोई विचार उसके अंदर आता चला जाए उसको नर्म और गर्म तरीके से बताता He चला was जाए। not wavering in the principles. और वो सिद्धांतों में विचलित नहीं होता था। He was not uneven in his conversation. और वो अपनी बातचीत के अंदर ऊपर नीचे नहीं होता था। But he was a remarkable man in his steadfastness. और वो उस दृढ़ता के अंदर बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति He था। was consistent in himself. और वो अपने आप के अंदर स्थिर और कायम था। That's what he meant by what he went out to see, a reed shaken in wind. और इसका वो मतलब है कि तुम क्या उस वहां पर क्या देखने गए उस सरकंडे को जो हवा में हिलता है? A reed is something that moves in the wind. और सरकंडा एक ऐसी चीज है जो हवा में हिलता है। The winds of popularity will take it to one side. और प्रसिद्धता की जो हवा चलती है उसे एक तरफ ले जाएगी। But when that stops and opposition comes, it moves in another direction. और जब एक विरोध की हवा चलेगी तो वो दूसरी दिशा में चला जाएगा। It's not that now Herod's anger has begun to blow over John, that John has compromised. और इसका मतलब No. ये नहीं कि हेरोदस राजा का क्रोध यूहन्ना के ऊपर आ गया तो वो अपनी गवाही को बदल देगा, अपने स्थान को बदल He देगा। says John is still the same. और Hallelujah. यूहन्ना फिर भी जैसा था वैसा बना रहा। What he went out to see in the wilderness, a reed shaken in the wind. और तुम जंगल में क्या देखने गए? हवा में इधर उधर हिलते हुए सरकंडे को। John was the same in all weathers. और हर एक मौसम के अंदर यूहन्ना एक जैसा रहा। Yes. John bore the testimony of Christ. और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही को बनाए रखा, पहने रखा। He was consistent. वो स्थिर था। It's not that one day he said one thing and another day he said something else. और इसका ये मतलब नहीं कि एक दिन उसने एक चीज की गवाही दी, दूसरे दिन दूसरी चीज की We are गवाही living दी। in a time we can always get to hear weathercock, weathercock testimonies. और हम जानते हैं इन दिनों में लोग इस प्रकार से बोलते हैं जैसे मौसमी पक्षी तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। You know weathercock? Have you seen और weathercock? क्या आपने मौसम के अंदर कई पक्षियों को देखा है जो उड़ते रहते हैं? Many people, their testimonies are like weathercock. और कई लोगों की They go गवाही by the wind that blows. Today, great. God has done great things. Hallelujah. Next day. और लोग जब एक दिन ऐसी गवाही देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जब वो उत्साहित होंगे, God is great. He has done great things in my life. और वो कहेंगे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य मेरे The जीवन में next करे। 6 months, no testimony. और अगले 6 महीनों में गाना बिल्कुल भी नहीं शांति। गाता है। और खाना भी नहीं खाएंगे, नहीं. गाना भी नहीं गाएंगे, खाना जरूर खाता है भाई, गाना नहीं गाता है. गाना भी नहीं गाएंगे। I want to tell you, we get to hear a lot of weathercock testimonies today. और हम मौसमी पक्षियों की तरह बहुत ही Many गवाहियों preachers सुनेंगे। are like a reed in the wind. They change
according to circumstances, according to the wind is blowing. Somebody preaches prosperity, they are taken up with prosperity. Somebody speaks about worship, this is what we need. We need to have worship like this. David danced before the Lord. Then they go to that extent. और इन दिनों में हम देखते हैं जो प्रचारक हैं वो लोगों के स्वभाव के अनुसार Yes. जैसी हवा चल रही है उसके अनुसार वो संदेश देते हैं। No अगर आशीष की consistency. बात है तो आशीष की बोलेंगे, अगर स्तुति के बारे में बोलना है उसके बारे में बोलेंगे। Uneven in their conversation. वो अपनी बातचीत के अंदर हमेशा ऊपर नीचे रहते हैं, Saints स्थिर of नहीं God. रहते। John wasn't like that. लेकिन यूहन्ना इस प्रकार का प्रचारक नहीं Nor था। should any one of us be like a weathercock, or we are not to be like a reed in the wind, in other और words. हमारे बीच में भी हमारे में से एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सरकंडे की तरह इधर उधर हिलता रहे। He was so consistent. वो बहुत ही स्थिर था। He confessed and he denied not. उसने चीजों का अंगीकार करा और उसको उससे मुंह नहीं मोड़ा। He said to Herod, you cannot have your brother's wife, full stop, and that's it. उसने हेरोदेस को कहा कि तू अपने भाई की पत्नी को अपना नहीं बना सकता। नहीं, you cannot. तू नहीं बना सकता। That's it. और वही चीज कायम रही। No, but yet, और अगर मगर कुछ नहीं। he was not a reed in the wind, और वो एक सरकंडा नहीं था हवा में। confessing one thing and denying it afterwards. और एक चीज को एक समय में मानना और दूसरे He समय में उससे फिर confessed जाना। and he stood by it. उसने उन चीजों की घोषणा करी, अंगीकार करा और उसमें कायम रहा। Saints of God, परमेश्वर के प्रियो, I just shared these thoughts with us और इन वचनों को मैंने आपसे बांटा to let you know that कि आप ये जान जाएं John was not offended. कि यूहन्ना को ठोकर नहीं लगी। But the reality is लेकिन वास्तविकता ये है that the Lord Jesus Christ could perceive that John is in a precarious state at that time. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस चीज को अनुभव कर सका कि यूहन्ना इस समय में बहुत ही कठिन परिस्थितियों के अंदर है। Saints of God. परमेश्वर के संतों, So even in our lives, और हमारे जीवनों में भी we need the strengthening of God in our lives. परमेश्वर से हमें शक्ति प्राप्त हो, इसकी हमें आवश्यकता है। You know what I perceive in my heart is when the disciples came and shared with him these thoughts. और जब उसके शिष्यों ने इन चीजों को यूहन्ना से बांटा, And when even he shared that portion, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. और जब उस प्रभु यीशु मसीह ने उसके शिष्यों से ये बोला, धन्य है वे लोग जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाएंगे, He took that, उन्होंने उन चीजों को ले लिया he covered himself with that. और उन्होंने उसको Amen. ओढ़ लिया। He took that counsel of God and covered himself. और यूहन्ना ने मसीह की इस सलाह को ओढ़ लिया And that helped John. और उस सलाह ने यूहन्ना की That सहायता helped करी John that he was not offended. और उस सलाह ने यूहन्ना की सहायता करी कि He उसको took ठोकर that न लगे। word and covered himself. और मसीह के उन शब्दों को उसने ग्रहण कर लिया और ओढ़ लिया। How और उसे ठोकर necessary नहीं लगी। it is for you and me in our lives. और कितना जरूरी है हम भी प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को ग्रहण करें, That we receive his counsels and cover ourselves, protect ourselves with that word from that condition that we may slip into. और परमेश्वर की इन सारी सलाहों को हम प्राप्त कर लें और उनको ओढ़ लें ताकि हम अपने आप को बचा सकें उन परिस्थितियों में जिसमें हम हैं। Saints of God. परमेश्वर के लोगों, And the Lord says, cast not away your confidence. और वचन कहता है, प्रभु कहता है कि अब अपने हियाव को छोड़ो मत। Cast not away your confidence, और अपने विश्वास को छोड़ो मत, which has a great recompense of reward. और जिसका एक बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। How much we need to receive that word. और हमने कितना अधिक इन वचनों को प्राप्त करना है। Amen.
and cover myself और अपने आप को ओढ़ लेना है, and come under the protection of that word. ताकि इन वचनों की सुरक्षा की Let छाया that में आ word जाए। strengthen me in my trials, in my situations, that weariness do not set into my heart. ताकि परमेश्वर के ये वचन मेरी सहायता बने, मेरे सहायक बने, ताकि मेरे ऊपर कोई भी थकान या शिथिलता ना आ जाए। Now this word here, cast not away your confidence. और यहाँ पर कि तुम अपने हियाव को ना छोड़ो, That word confidence is the same word that is also used to and translated as boldness in other places. और यहाँ पर इस हियाव का जो दूसरी जगह के ऊपर संदर्भ में लिखा गया है कि वो निडरता, You know, especially in Acts chapter 4, और प्रेरितों के कार्य जो चौथे अध्याय में लिखा when गया है, Peter and John were brought before the rulers, और जब उन हाकिमों के सामने यहाँ पर यूहन्ना को और पतरस को लाया गया, you know, they spoke with boldness. और वो बेधड़क होकर बोले, निडर होकर बोले, It's the same word. और ये वो एक ही वो शब्द है। In other words, what the Hebrew writer says is that cast not away your boldness. और दूसरे शब्दों में इब्रानियों का boldness. लेखक ये कह रहा है, अपनी निडरता को आप ना छोड़ो। Yes. Cast not away your boldness. और आप अपनी निडरता को मत छोड़ो। We see that Peter and John were bold before the rulers. और हम देखते हैं उन हाकिमों के आगे पतरस और यूहन्ना बेधड़क निडर होकर खड़े रहे, You know, they spoke in their forthrightness. और उन्होंने अधिकार के सामने उनके घोषणा करी और गवाही दी। They did not speak with uncertainty in their hearts. और अपने हृदय के अंदर अस्थिरता में होते हुए उन्होंने गवाही नहीं दी या बोले, They were not wavering in their hearts. वो अपने हृदय के अंदर अस्थिर नहीं थे। They were not playing with words this way and that way to save their lives. और वो कोई शब्दों से खेल नहीं रहे थे अपने जीवनों को इस तरह से उस तरह से बचाने के लिए, But they spoke with boldness. लेकिन उन्होंने घोषणा करी बेधड़क होकर निडरता के साथ। Saints of God, परमेश्वर के संत, cast not away your boldness. अपनी निडरता को त्यागे ना। Our boldness in Christ. प्रभु यीशु मसीह में आपके पास जो निडरता है, Our forthrightness in all that the Lord has spoken into our hearts. हमारा जो एक जन्म सिद्ध अधिकार है प्रभु यीशु मसीह में, उसको हम ना छोड़ें। Cast not away आप उस चीज का त्याग ना करें। your forthrightness, अपना जो एक जन्म सिद्ध अधिकार है, your certainty, आपकी जो एक निश्चितता है, your assurance, आपका जो आश्वासन है, your confidence. आपका जो विश्वास है, भरोसा Cast है, not it away. उस चीज को आप छोड़े ना, It hath great recompense of reward. क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। When you read through the whole letter of Hebrews, और जब आप इब्रानियों की पूरा पत्री पढ़ते हैं, one thing we see, एक चीज को हम देखते हैं, there is a persuasion to go on. और एक चीज के लिए उकसाया जा रहा है कि आप आगे बढ़ते चले जाओ। The whole context of this letter, इस सारी पुस्तक का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, it is a persuasion to go on and not to draw back. कि आपको उत्साह जा रहा है, उत्सुक किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ते चले जाओ, पीछे मत हटो। They were going through rejections, persecutions, long drawn battles in their spiritual walk. और ये विश्वासी अपने जीवन के अंदर तिरस्कार के अंदर से गुजर रहे थे, परीक्षाओं के अंदर से गुजर रहे थे, और ये युद्ध ऐसा लग रहा था कि लंबा खिंच रहा है। Reminds them about their beginnings. और यहाँ पर लेखक उन्हें याद दिलाता है उनकी शुरुआत के When बारे they में। were confident, और जब वो बहुत ही विश्वास when they भरे were थे, bold, और जब वो निडर थे, when they were assured in their hearts. और जब उनके मन के अंदर एक दृढ़ आश्वासन था, But when the sufferings increase, और लेकिन जब
मुसीबतों ने बढ़ना शुरू करा, when things began to be uncertain before them, और उनके सामने जब परिस्थितियां अस्थिर बन गईं, when opposition began to increase, और जब उनका विरोध बढ़ता चला गया, then तब their confidence, उनका विश्वास, उनका they भरोसा, began to lose. वो उसको खोने लगे। How true that is. और ये कितनी सच्चाई है इसमें। How confident we were, as I shared right at the beginning this morning. और हमें कितना ज्यादा हम निडर और बेधड़क थे शुरू में। How bold we were. हम कितने निडर थे शुरू The में Lord is my future. कि परमेश्वर I don't मेरा worry भविष्य about. है, मेरे को और किसी चीज की My चिंता tomorrows He holds. नहीं। मेरा कल उसके हाथों में है। But afterwards, लेकिन उसके बाद when you said that, you are only 22. But जब we are आपने 40. जब आपने इस चीज की घोषणा करी थी अभी तो तो आप boldness is gone. 22 साल के थे, लेकिन अब तो आप 30 साल के हो गए, 40. 40 के हो गए। हाँ हाँ, आपका तो 30 साल में हो गया होगा। So we see it, this long drawn tryings or trials in our lives, और ये जो संघर्ष और परीक्षाएं जो कि खत्म ही नहीं हो रही और ये लगातार बनी हुई हैं, begin to lose that confidence. तब ये संभव है कि हम उस विश्वास को खोना शुरू करें। And I want to tell one thing. और एक चीज मैं बताऊंगा, This is what I've seen. और एक चीज को मैंने देखा, Several men in ministry, और कई लोग सेवकाई के अंदर as they began to grow older, और जैसे जैसे आयु में वो बढ़ने लग गए, I have seen some of them getting stronger and bolder in the Lord, और मैंने देखा कि वो परमेश्वर के अंदर और मजबूत होते चले गए और निडर होते चले at the गए। same time. और उसी समय में I also have seen और मैंने ये भी देखा, more of them और अधिक संख्या उनकी, getting weaker and less confident in the Lord. और वो कमजोर होते चले गए और उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर और कम होता चला गया। And I want to tell you, saints, और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, this is something we ought to be concerned about. और इस चीज के लिए हमें मनन चिंता होनी चाहिए। Yes. Cast not away your boldness, your forthrightness, your certainty by which you walked in your early days. और आपने अपने जीवन के प्रारंभ के अंदर जिस विश्वास के अंदर भरोसे के साथ, निश्चितता के साथ, बेधड़क होकर, निडर होकर जिस चीजों का आपने अंगीकार करा था, उसको Now आप what ना will छोड़ें। happen? लेकिन क्या हुआ बीच में? Will children take care of me? क्या बच्चे मेरी चिंता करेंगे? Who will care for me? मेरे लिए कौन चिंता करेगा? आजकल का बच्चे सब ऐसे हैं. आजकल के बच्चे सब ऐसे। Who will care? कौन मेरी What चिंता is my करेगा? future? मेरा भविष्य क्या है? Saints of God, परमेश्वर के लोगों, I haven't come there yet, मैं अभी तक वहां पर नहीं आया, but what I'm trying to say is, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, we have many trials, और हमारे सामने बहुत many परिस्थितियां और things, परीक्षाएं but हैं, one thing is very clear, लेकिन एक चीज बहुत ही स्पष्ट है, and we may we lay hold of this word in our lives, may we wrap this word around us. और इन वचनों को हम थाम ले, ग्रहण करें और ओढ़ लें। Amen. You like that expression? Wrap this word. क्या आप इस बात को Clothe पसंद this करेंगे word, कि आप इन वचनों को ओढ़ लें, that पहन we लें, may not be offended in our hearts. कि आपके हृदय के अंदर ठोकर ना लगे, We may not lose that confidence. हम अपने उस हियाव को ना छोड़ें, We may not lose that certainty by which we walked in our lives at हम one time. उस निश्चितता को, उस आश्वासन को जिसमें एक समय में हम चले थे, खोए ना। Those assured steps we took in the Lord at one time. और वो विश्वास से भरे हुए कदम जो हमने लिए थे एक समय में, उससे हम पीछे ना मुड़े। Saints of God, परमेश्वर के लोग, these are some of the reasons
that we may get offended with the Lord. और ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमें ठोकर And you लगे। can add to that list many more things. और इस सूची के अंदर आप और चीजों को भी जोड़ सकते हैं। There are plenty of grounds, और कई स्थान ऐसे हो सकते हैं plenty of reasons और कई कारण हो सकते for हैं being offended in our lives. हम अपने जीवन में ठोकर खाएं, उसके If कई you कारण are हो सकते going to be, if you are open to it, there could be many, many reasons. हैं। अगर आप इसके लिए खुले हैं तो बहुत कारण हो सकते If you हैं। are not careful about it, you can have many reasons to get offended. अगर आप अपने जीवन में संवेदनशील और सतर्क नहीं है तो आपके पास बहुत अवसर हो सकते हैं But- कि आपको ठोकर लगे। There is a blessedness लेकिन एक आशीष of है the unoffended where we can be in our lives. जहाँ पर हम ठोकर ना खाएं और परमेश्वर की तरफ से वो एक धन्यता और एक आशीषता हमें And मिले। as we have seen the example of Elisha last night, और जिस प्रकार से एलीशा के उदाहरण को कल रात को देखा, finally we see that at the end Elisha was justified in sticking to Elijah. और हम देखते हैं अंत में एलीशा को धर्मी ठहराया गया उन सारी चीजों में जिसकी वजह से वो एलिया के साथ जुड़ा रहा। You know, Elisha was justified at the end in sticking on with Elijah despite he was turned away as though Elijah was not interested in him. और हम देखते हैं अंत में एलीशा को उचित ठहराया गया कि किस प्रकार से वो निरंतर एलिया के साथ जुड़ा रहा। He was justified. उसको उचित और धर्मी ठहराया गया। It looked like he was pressing on to a bitter end, but at the end it was never bitter. और ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत ही कड़वे अंत की तरफ जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं उसका अंत कड़वा नहीं हुआ। What will happen to you? Your master will be taken away and you will be stranded there. और तेरा क्या होगा? तेरे स्वामी को ले लिया जाएगा और तू यहाँ पर अनाथ रह जाएगा। And he said, you hold your peace, I am going. और I'm sticking with this man. और उसने कहा कि तुम खामोश रहो, मैं अपने स्वामी के साथ जा It रहा was हूँ। never bitter, of course, at the end. और अंत में वो कभी भी कड़वाहट में नहीं आया। But one thing we see in the expression of Elisha, और एक चीज एलीशा के अभिव्यक्त के there अंदर हम was देखते हैं no trace of bitterness और हम देखते or हैं of being offended. उसके शब्दों के अंदर कोई भी कड़वाहट की बू को हम नहीं पाते। No trace of being offended in his heart at the word of Elijah. एलिया के किसी भी शब्दों के कारण हम देखते हैं उस एलीशा के व्यवहार में, शब्दों में कोई ठोकर की का अभिव्यक्ति नहीं है। And you see what he says. Just turn with me, sorry. और हम उस As I told you, I want to be very, very short today, but Second Kings chapter 2, दूसरा राजा दूसरा अध्याय। first of all, Elijah himself says to him, you stay on here. But Elisha said, as the Lord liveth, as thy soul liveth, I will not leave thee. और सबसे पहले एलिया ने एलीशा से कहा कि तू यहाँ पर ठहर जा, लेकिन उसने कहा जब तक मेरे में प्राण है और जब तक परमेश्वर है, Yes. मैं तेरा अनुसरण करूंगा। And then we see और तब हम देखते हैं the sons of the prophets saying to him, और हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं के जो चेले थे उन्होंने कहा, he says, knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? और क्या तू जानता है तेरे सर पे से तेरे स्वामी को आज परमेश्वर ले लेगा? And he says, और वो कहता है, yea, I know it. और वो कहता है हाँ मुझे I मालूम know है, it. मैं जानता हूँ। You see the certainty in those words. और अब आप देखें एलीशा के उन वचनों के अंदर कितना ठहराव I है। know it, मैं जानता हूँ, but you hold your peace. लेकिन तुम शांत रहो You hold your peace, I am not troubled. और तुम चुप रहो, इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। I am not troubled as you are troubled. और जैसे तुम परेशान हुए हो ऐसा मैं परेशान नहीं हुआ बा। Amen. How often even God's people
who would come and tell, oh my goodness, you left that good job? और कई बार परमेश्वर के जब लोग आते हैं और बोलते हैं, ओह तुमने इतनी अच्छी नौकरी को छोड़ दिया, You would have gone तुम चले जाते and made a fortune for your life. और अपने जीवन के अंदर आप अपनी किस्मत बनाते। Why you didn't go? तुम क्यों नहीं गए? Because I will miss the church. What? क्योंकि मैं इस सहभागिता को खो दूंगा। What you will miss? क्या? अरे यार इतना churches है all over the world. पूरे संसार में इतनी कलीसियाएं हैं, What are you going to miss? आप किस चीज No, को I will खोएंगे? miss the church where God has brought me. और लेकिन मैं उस कलीसिया को खो दूंगा जहां पर परमेश्वर मुझे लेके आया है। You know, we see that there are several who will try to bring trouble into our hearts. और हम देखेंगे हमारे चारों तरफ ऐसे लोग आएंगे जो हमारी जीवन के अंदर हमारी जान को परेशान करेंगे। But you see the heart of Elisha. लेकिन आप एलीशा के हृदय को He देखो, says, I know it. उसने कहा मुझे ये मालूम है। Amen. And this is so important in our lives. और ये हमारे जीवन में भी जरूरी है। You know, to keep our hearts away from offenses is to know for sure the word, the voice of the Lord in our own lives. अपने हृदयों I को know it. अपने हृदयों को ठोकर लगने से बचाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने हृदय में इस चीज के लिए कायल हो जाएं कि परमेश्वर ने हमें कहां ला के रखा है। Yes. He said, I know it. मैं जानता हूं, I know it. मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। And he was not willing to let go that God had brought him in or called him into. और वो उस चीज को खोना नहीं चाहता था जिसके अंदर परमेश्वर उसको लेके आया था। He would not let go those things into which God has brought him in. और उन चीजों में जिसमें परमेश्वर उसको लेके आया था, उन चीजों को वो खोना नहीं चाहता था एलीशा। So we see him confessing again and again, I know it. और वो बार बार इस चीज का अंगीकार कर रहा है कि मुझे मालूम है। Yes. He was tested, he was tried all through. और इस सारी यात्रा में हम देखते हैं उसके ऊपर लगातार परीक्षा आई और उसको परखा गया। Therefore, saints of God, Elijah teaches us a lesson even today. और हम देखते हैं Elisha. जो एलीशा है वो आज भी हमें एक पाठ पढ़ाता है। And how much we ought to learn that lesson in our own और lives. कितना हमने उससे ये पाठ को पढ़ना है। And learn this lesson not to cast away our confidence. और उससे हमने इस पाठ को सीख लेना है कि अपने विश्वास को हमने नहीं छोड़ना, याद को Do नहीं not छोड़ना, cast away our certainty. और अपनी जो निश्चितता है, स्थिरता है, उसको छोड़ना नहीं। Even when men will try to hinder our convictions and our walk with the Lord. हमारे एहसासों को, हमारे भीतरी जो निष्कर्ष है, उनको बाहर के चारों तरफ के लोग हिलाने की, भटकाने की कोशिश करेंगे। That's one thing we have to learn of Elisha even this morning. लेकिन एलीशा के जीवन से हमने सीखना है। Elisha did not cast away, fling away his confidence and certainty. एलीशा ने अपने जीवन के अंदर हियाव को नहीं छोड़ा, उस निश्चितता को, उस आश्वासन को उसने त्यागा नहीं। You know, when we turn to the book of Hebrews again in the light of this, और इस प्रकाश के अंदर जब हम इब्रानियों की पुस्तक को देखेंगे, there is a wonderful expression in chapter 12. और 12वें अध्याय के अंदर बहुत ही अद्भुत अभिव्यक्ति है। In the midst of all these trials और इन सारे दुखों और and परेशानियों में, difficulties that these saints were going through, और ये सारी परेशानियां जिसमें ये विश्वासी गुजर रहे थे, and here is the counsel of God, और यहाँ पर परमेश्वर से एक सलाह आती है। verse 27, और 27वां वचन, and this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. We receiving a kingdom which cannot be shaken. हम एक ऐसे राज्य को प्राप्त करते चले जा रहे हैं जिसको हिलाया नहीं जा सकता। Yes. So here it talks about a shaking. और यहाँ पर हिलने की चीजों का वर्णन है।
which speaks about the trying times that God will bring about on this earth. और ये एक चीज को दर्शाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर कितनी यहाँ पर परीक्षाएं की घड़ियां लाएगा। Times of testings and trials. हमारे विश्वास की परीक्षा होगी, कई परिस्थितियां आएंगी। And then the writer says, wherefore we are receiving a kingdom that cannot be shaken. और यहाँ पर लेखक कहता है इन सारी चीजों के बीच में हम एक ऐसे राज्य को प्राप्त करते जा रहे हैं Receiving जो a हिलाया नहीं जा kingdom सकता। that cannot be shaken. तो एक ऐसे राज्य को प्राप्त करते चले जा रहे हैं जिसको हिलाया नहीं जा सकता। A kingdom that is substantial. और एक राज्य जो कि स्थिर है, ठोस है, Unshakable. जो कि हिलाया नहीं जा A सकता। kingdom that is sure and certain. That's और what एक it means. राज्य जो कि निश्चय और पक्का है। A kingdom that is as strong as a rock. और एक ऐसा राज्य जो इतना मजबूत है जैसे चट्टान होती है। But what is happening with us? लेकिन हमारे जीवनों में क्या हो रहा है? We are shaken. हम हिल रहे हैं। We are being shaken, but in the midst of that shakings, we are receiving a kingdom which cannot be shaken. Amen? हम हिल रहे हैं परिस्थितियों के अंदर, लेकिन इन सब के बीच में हम एक ऐसे राज्य को प्राप्त कर रहे हैं जिसको हिलाया नहीं जा सकता। Now that is precious. और वो अमूल्य और अद्भुत है। We are shaken, हम हिल रहे हैं, we are thrown around, हमें इधर उधर फेंका जा रहा है। and often we wonder as to what's happening with our lives. और अक्सर हम हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं हमारे जीवन में क्या हो रहा है। Have you thought like that? क्या आपने ऐसा सोचा? Lord, what's happening with me? आपके जीवन में क्या हो What's रहा है? happening with my life? मेरे जीवन में क्या हो रहा है? Shaken, हिल रहे हैं, thrown about. इधर उधर फेंका जा रहा है। But remember, लेकिन याद in रखें, the midst of that, इन सारी चीजों के होते the हुए greatest joy is we are receiving a kingdom that cannot be shaken. इन सारी चीजों के Amen. लिए हमारे लिए खुशी Amen. का जो मुद्दा है वो ये है We कि are हम एक receiving a ऐसे kingdom. राज्य को प्राप्त करते चले जा रहे हैं जो हिलाया नहीं जा सकता, That cannot be shaken. जो हिलाया नहीं जा सकता। Saints of God, परमेश्वर के लिए, this is where we are. और यहाँ पर हम हैं। Many things will come about on the earth in these last days. इन अंतिम दिनों में इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चीजें आएंगी। Many things are yet to come in the shakings of God, in the testings of God upon this earth. और परमेश्वर जब इस सारे पृथ्वी को हिलाएगा तो कई चीजें अभी आना बाकी हैं। But may I say one thing to all of us. लेकिन एक चीज जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, In the midst of that, और इन सब चीजों के बीच में, let's not fling away और our confidence, और इन our सब चीजों के boldness, बीच में our certainty that we are receiving a kingdom that is certain, that is sure, that is rock-like. इन सब चीजों के बीच में जो हमारा आश्वासन है, हमारी निश्चितता है, हमारी स्थिरता है, वो और हमारा हियाव है, उन चीजों को हम ना छोड़ें, क्योंकि हम एक ऐसे राज्य को प्राप्त करते चले जा रहे हैं जिसको हिलाया नहीं जा सकता। Amen. Cast not away your confidence, और आप अपने विश्वास को छोड़े ना, हिम्मत को छोड़े which ना, has जो a recompense of reward. जिसका एक बहुत ही बड़ा प्रतिफल And as I है। said, there are many more things to share with us. और जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजें बांटने के लिए, But I know that लेकिन मैं जानता हूँ, we have difficulty with our capacity. और मैं जानता हूँ हमारी क्षमता के साथ हमें समस्या है। I begin to realize that और मैंने इस चीज को जानना शुरू करा some of us already left this place कि कईयों ने तो इस स्थान को छोड़ दिया, while you are still here physically. और आप You शारीरिक are रूप already से in अभी the यहाँ room पर हैं, packing your things. You are on the way. और कई लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं जाने के लिए, While you are still seated here. और आप अभी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। And when you are hearing the unshakable kingdom, you are being shaken about your going home today. और आप जब एक ना हिलने वाले राज्य के विषय में सो रहे हैं, Yes. लेकिन आप हिल रहे हैं कि आप जाएंगे कैसे। Saints of God,
और परमेश्वर के लोगों, I thank God that I could be in this camp meetings और here. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस शिविर सभा के Is there बीच में anyone पाया like गया। me here? May God help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे। Take this word. इन वचनों को थाम ले। If you take this word, अगर आप इन वचनों को लेंगे, I'm sure और मुझे पूरा विश्वास है we will continue in this walk with God. कि इस परमेश्वर के अंदर इस चाल में हम बने रहेंगे। We'll appreciate this fellowship in Christ Jesus. परमेश्वर के अंदर इस सहभागिता की हम सराहना करते हैं। And I want to tell you, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, we all need a strengthening of our faith. और हम सबको जरूरत है कि हमारा विश्वास मजबूत बने। Amen? The strongest man, और चाहे कोई कितना शक्तिशाली मनुष्य हो, even he has those moments और when उसके- he is tried. और उसके जीवन में ऐसे समय आ सकते हैं जब उसकी परीक्षा हो। So may God help us. और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। Cast not away, therefore, your confidence, इसलिए your आप boldness, your certainty, your surety, your assurance. इसलिए आप अपनी निडरता को, अपने विश्वास को, अपनी निश्चितता को, अपनी स्थिरता को, अपने आश्वासन को त्यागे ना। Just one more scripture. एक और वचन, Hebrews chapter 11, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय verse 6. और 6वां वचन, But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them. He is a rewarder of them that diligently seek him. Cast not away और your विश्वास confidence, which has a great recompense of reward. He is a rewarder. और आप अपने उस हियाव को छोड़े ना, क्योंकि प्रतिफल देने वाला वो परमेश्वर है। Amen? He is the rewarder. और परमेश्वर है जो प्रतिफल देगा। So may we take this word and clothe ourselves, और cover इन- ourselves. और इन वचनों को हम ले लें और ओढ़ लें और अपने आप को उसमें सुरक्षित कर दें। Amen? And say, Lord, help me and keep me away from offenses, from being offended with you or with your people ever in my life. और हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तू मुझे बचा कि तेरे कारण मैं ठोकर ना खाऊं और ना ही मैं दूसरे भाई बहनों के कारण ठोकर खाऊं। अपने As we heard last night, और जैसे कल रात हमने सुना, as Elisha went after Elijah, और जिस प्रकार से एलीशा लगातार एलिया के पीछे चलता गया। you may not need me, but I need you, Elijah. ए एलिया, तुझे मेरी जरूरत ना हो, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, So I'm not going to leave you. इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। Saints, I need the Lord. I need the church of Jesus Christ. I need the brothers and sisters in my life. हे प्रियो, मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है, मुझे अपने जीवन में सहभागिता की आवश्यकता है, दूसरे भाई बहनों की मुझे जरूरत And है। if that's what we keep in our hearts, there will be less chances to be offended in our hearts. अगर इन सारी चीजों को हम अपने मन के Thank you, अंदर Lord. छुपा के रखेंगे तो हमारे जीवन में ठोकर खाने के कम कारण होंगे। I would close here, और आज हम Today- यहाँ पर समाप्त करेंगे and may God help us और परमेश्वर हमारी सहायता as we करे। come around the table of the Lord. और प्रभु भोज के निकट जब हम आएंगे, Shall we all stand up? Shall we all stand up? हम सारे Thank you, खड़े हों Jesus. And spend a little. Thank you, Jesus. Let's clothe ourselves with His word. परमेश्वर के वचनों को आप ओढ़ लें। Thank you, Jesus. Cover ourselves with His counsels. उसकी सलाहों से अपने आप को ढांप दें। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Don't miss that work of God in your inner man. अपने भीतरी मनुष्य के अंदर परमेश्वर के कार्य से आप वंचित ना हो जाएं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus.